Hello class, in last lecture we are taken here regression and properties of regression coefficient and taken some example which were here solved on the regression. Today we will see next point, time series analysis. So what is the time series analysis? First we see the definition. When the quantitative data is arranged in an order of their occurrence or historical order, the resulting statistical series is called as the टाइम सीरीज. उसे क्या कहेंगे हम? टाइम सीरीज कहेंगे. दीज आर द डाटा रिलेटेड टू द time observation taken at the specific interval. This interval may be year, month, week or even an hour. It is very important to know that at most all the science how the condition change within the passage. यहाँ पे देखो टाइम सीरीज मतलब क्या रहेगा कि आपकी क्या रहेगी, व्हेन द क्वांटिटेटिव डाटा अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, मतलब उसका ऑकरेंस कब है, टाइमिंग कब है, उस हिसाब से. अगर यहाँ पे हम नॉर्मली लेते हैं ना कि 1991 1981, इस हमने ये ऐसे अरेंज किया है. मीन्स व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट वी अरेंज इट एज देयर ऑकरेंस. उसके हिस्टोरिकल ऑर्डर से हमने उसे अरेंज किया है. इट इज़ कॉल्ड एज द time series. So what is the importance of the time series? It is very important to economist and the business one. It help us to understand the past and present and also help us to compare in between the two here what two periods. Okay, so a businessman can anticipate the changes in the business and for be prepare for it. वो क्या कर सकता है? प्रिपेयर हो सकता है. नेक्स्टली जो भी उसको पास्ट में क्या था अब क्या है उसके लिए कंपेयर करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज different time series also can be compared if they are measure some related quantities. Examples of the time series are annual export of the India, monthly sales in the shops, daily stock price in a share market and number of books lent every week by a library. यहाँ पे देखो ये सारे हम क्या कर सकते हैं, सारे क्या है टाइम सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं. क्या है? एनुअल एक्सपोर्ट इंडिया का जो है एनुअल एक्सपोर्ट 2000 में कितना हुआ था, देन 2001 में, 2002 में. हम एनुअल इनकम को भी कंपेयर कर सकते हैं, कौन से साल में ज़्यादा हो गया, कौन से साल में कम हो गया. देन मंथली सेल्स इन शॉप, डेली स्टॉक प्राइस इन अ शेयर मार्केट, फिर नंबर ऑफ बुक्स लेंट इन एवरी वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी. ये सारे हम क्या कर सकते हैं इस टाइम सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम series? Here time series are affected by the variety of the force. Effect of this force are separated when we analyze the time series, and this types of the time series is called as the component. क्या कहते हैं उसे? component कहते हैं. Now there are four component. First component is secular trend, second है seasonal variation, next है cyclical एंड लास्ट में है इरेगुलर या फिर रैंडम वेरिएशन. अभी देखो सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या रहता है कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ द सीरीज, स्टेडी मूवमेंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. इट शो आइदर कंटिन्यूस ग्रोथ, डिक्लाइनिंग और हियर stagnation. If we consider the production of a meal producing synthetic fiber, we may find an increasing trend. So this will be due to the rising in demand, but because of fashions and the increasing requirement with the increase in population. This trend are a slowly and continuous movement, rarely subject to the sudden alternation. The actual value of many may be away from the trend because of other influence, but the trend is operative and can be seen if we remove the effect of other factors. If the death rate are seen for the periods of 15 years, we can see a downward trend. This is due to the better medical shops help available, and an economic time series may show a downward trend because of their are the
products available. Example, detergent are used in the place of soap. यहाँ पे देखो क्या है कि आपको कोई ऑप्शन अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका कि उस हिसाब से क्या हो जाता है, उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं कि टाइम अगर आपके किसी भी एक चीज थिंग के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल रहता है तो क्या हो जाती है कि उसकी डिमांड फिर ये हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन। यहाँ पे देखो सीजनल वेरिएशन का कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम है या फिर जो आपके विंटर वेयर्स हैं या फिर रेनी सूट्स है, ये सभी कैसे रहते हैं, सीजनल रहते हैं। कि आपका अम्ब्रेला वगैरह कब ज़्यादा डिमांड रहता है, इन रेनी सीजन। स्वेटर्स, विंटर सूट्स वगैरह इस सब की कब ज़्यादा डिमांड रहती है, इन विंटर। और कॉटन वेयर की कब ज़्यादा डिमांड रहती है, इन समर। सो दीज आर कॉल्ड एज द सीजनल वेरिएशन। नाउ फेस्टिवल वाइज भी देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं। दिवाली क्रिसमस में आपके क्या है कि जो स्वीट्स वगैरह है या फिर आपके पटाखे वगैरह है, इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। ओके, होली के इसमें सीज़न में क्या रहेगा, आपको कलर्स की वगैरह ज़्यादा डिमांड रहती है। सो दिस इज़ अ सीजनल वेयर, राइट ना। जो सीज़न के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाती है। फिर सीज़न के हिसाब से उसके प्राइस में भी क्या हो जाता है, अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। अभी क्रॉप्स भी देखो कि बहुत सारे आपके राइस वगैरह है, उसकी डिमांड क्या रहती है, सीजनल ज़्यादा रहता है उसका। मीन्स दिसंबर के में वगैरह उसके क्या है कि आपकी राइस की वैल्यूज़ कम है, आप दूसरे सीजन में लोगे उसकी वैल्यू तब ज़्यादा रहेगी। दिस ऑल आइटम्स आर द सीजनल वेरिएशन, मीन्स सीजनल आइटम्स। नाउ सो नेक्स्ट इज साइक्लिकल वेरिएशन। नाउ साइक्लिकल वेरिएशन मतलब क्या रहेगा, अ सर्टन वेरिएशन विच रिकरिंग थ्रू आउट, नॉट अ पीरियोडिकल, दे शो अ बेसिक चेंज इन इकोनॉमी in general. The variation continue more than the 1 year is called as the cycles. Most of the economic type series is affected by the general business cycle. यहाँ पे क्या हो जाता है, the cycle move through the 4 phases. Depression for the recovery, then come the here period of the prosperity. Afterward it gives a recession which again leads the depression. Each phase change the gradually to next. Few business prosper during the depression and most of concern enjoy the periods of the prosperity. यहाँ पे cycle generation generally are not regular, they have different periods and amplitudes. यहाँ पे क्या हो जाता है कि हर एक इसके डिमांड के इससे कि कुछ प्रोडक्ट्स सडनली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी कोविड के पीरियड में सडनली सैनिटाइज़र वगैरह या फिर मास्क वगैरह इसकी डिमांड बढ़ गई। वैसे ही है कि पीरियड के हिसाब से क्या हो जाता है, सडनली किसी प्रोडक्ट डिमांड में आ जाता है और दे इन्जॉय द प्रॉस्पेरिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर ऑन रैंडम वेरिएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। व्हाट आर द रैंडम वेरिएशन, दैट द this variation are irregular, they cannot be predicted. जिस मीन्स जो नेचुरल डिज़ास्टर रहते हैं, फ्लूड, अर्थक्वेक या फिर जैसे अभी जो कोरोना वगैरह आया है ये, या फिर आपके फूड पे कुछ मीन्स सडनली कोई ये हो गया, ख़राब होने लगे सडनली। ओके, तो ये सभी चीज़ें कैसे रहती है कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट ना। जैसे ही आ जाती है उस हिसाब से क्या हो जाते हैं, फिर उस हिसाब से आजू बाजू की चीज़ों की क्या हो जाती है, वैल्यू सडनली रेज हो जाती है। मीन्स फ्लूड वगैरह आ गया तो क्या हो जाता है, फूड ग्रेन वगैरह इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, सडनली बढ़ जाती है। या फिर बहुत ही ज़्यादा सूखा अकाल पड़ने लगा, आपकी पानी बॉटल वगैरह पानी की वैल्यू क्या हो गई, वहाँ पे सडनली रेज हो गई। सो ये चीज़ें कैसे रहती है ना कि वैल्यूज चेंजेस हो जाती हैं। ओके, सो दीज आर द 4 कंपोनेंट
which are mainly affected on the year time series. Okay, now how to analyze this method of analysis? Time series analysis, we try to separate our this four component. The assumption of the time series and the component of the four additive multiplicative components. यहाँ पे देखो फोर कंपोनेंट उन्होंने दिया है OTCSI. सो OTCSI मतलब क्या रहता है? ओरिजिनल टाइम सीरीज, ट्रेंड वैल्यू, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन. यहाँ पे देखो हमने जो कंपोनेंट्स अफेक्ट करते हैं ना, उसे हमने क्या किया, मॉडल बनाया उसका. तो एडिटिव मॉडल क्या हो जाती है कि O इज इक्वल्स टू ओरिजिनल टाइम सीरीज इज इक्वल्स टू व्हाट, T plus C plus S plus I, TCSI. Okay, this is your additive model. What is the multiplicative model? O is equals to TSCI. Okay, O is equals to, this is your multiplicative model and this is your additive model. So कौन सा मॉडल ज़्यादा commonly यूज़ किया जाता है? That your multiplicative model is commonly used. We find the trend value by any method discussed in the next session. If we divide the time series by this trend value, we get SCI. ओके, हमें क्या मिल जाता है? दिस SCI मिल जाता है ट्रेंड वैल्यू के लिए. इफ़ वी फाइंड द सीजनल, ट्रेंड वैल्यू के लिए वी गेट SCI, सीजनल के लिए बाय डिवाइडिंग देम वी गेट CI. If yearly data, seasonal are not seen. मीन्स हर वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट सेशन वी सी हाउ टू गेट ट्रेंड वैल्यू. ट्रेंड वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं. मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड. ओके, सो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, फर्स्ट व्हाट, फाइंड द 3 ईयरली मूविंग एवरेज. 3 ईयर्स का हम मूविंग एवरेज देखेंगे. सो मूविंग एवरेज देखो यहाँ पे आपको एक डाटा दिया गया है एंड वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द, हाउ वी कैलकुलेट हियर मूविंग एवरेज. सो अभी हमने जो मेथड देखी है उसी को हम ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे. फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट ईयर का आपका तो कुछ नहीं आएगा, डैश ही रहेगा. 3 ईयरली कर रहे हैं ना, सो फर्स्ट 3 टर्म्स को क्या करो, ऐड करो. सो 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, 24. अगेन व्हाट आई डू, अगेन नेक्स्ट 3 ईयर्स को ऐड करो. ओके, सो व्हाट आई गेट हियर, 7 प्लस 9 प्लस 8, देन अगेन 9 प्लस, हर एक 3 ईयर्स को क्या करो, ऐड करते जाओ. यू विल गेट दिस वैल्यू. लास्ट ईयर को आपको ऐड नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है. ओके, दिस इज योर 3 ईयर व्हाट टोटल आपको मिल गई. ओके, नाउ एवरेज अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई डिवाइडेड बाय 3. एवरेज निकालना है, 3 ईयर्स का ले रही हूँ ना. सो हाउ आई गेट हियर, 24 डिवाइडेड बाय 3 इट इज़ इक्वल्स टू 8. ओके, हियर अगेन यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि हर एक नंबर्स को क्या करो, इस नंबर को डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट द एवरेज. सो यहाँ पे इस तरीके से मूविंग टेबल हम निकालते हैं. 4 ईयर मूविंग एवरेज दिया है. सो 4 ईयर्स के लिए देखो आपका क्या करना है कि फर्स्ट 2 ईयर्स हम एज इट इज स्लैश करेंगे एंड देन 1 2 3 4. सो 4 को, फर्स्ट 4 को ऐड करो, ईयर 4 ईयरली टोटल, ईयर टोटल, देन अगेन 4 ईयरली. इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसे कैलकुलेट करना है. ओके, देन सेंटर टोटल है. देखो यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय सेंटर टोटल. मैं यहाँ पे सेंटर टोटल मतलब क्या करूँगी, इससे डिवाइडेड बाय इन दोनों की एडिशन करूँगी. सेंटर टोटल के लिए 406 प्लस 415 ऐसे उसे ऐड करते जाना है. अगेन 415 प्लस 416 प्लस ऐसे उसे ऐड करते जाओ. ओके, यहाँ तक ऐड करो एंड देन स्टॉप इट. देन यहाँ पे देखो एवरेज कैसे निकालेंगे हम. एवरेज निकालने के लिए अभी ये कितने इसके ये है टोटल है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 करो, यू विल गेट द दिस वैल्यू. ओके, सेंटर टोटल को डिवाइडेड बाय 8 करो,
आपको क्या मिल जाएगा, आपका 4 ईयरली सेंटर एवरेज मिल जाएगा। ओके, इस टाइप से हमें क्या करने हैं, मूविंग एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम ये देखो, हमने यहाँ पे एवरेज तो निकाल लिया, अभी इसका ट्रेंड के बारे में थोड़ा ये करते हैं। इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसे अगर मैंने ड्रॉ किया एंड इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड इज़ रिप्रोड्यूस्ड। ओके, ट्रेंड इज़ रिप्रोड्यूस्ड। इफ़ इट इज़ अ कर्वीलिनियर ट्रेंड, कर्वीलिनियर मतलब ऐसे कर्व में आ गई, ऐसे कर्व में आ गई, कर्वीलिनियर ट्रेंड, we get a curve parallel to the original curve, that is trend is not vitiated by the moving average. Next है, if we take the series with regular fluctuation, peak and year troughs occurring after the fixed number of year, मीन्स क्या हो रहा है ना कि आपका जो अप एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, ये फिक्स्ड ईयर के बाद, मीन्स उसमें एक ये सिमिलैरिटी है। and we calculate the moving average, take the periods as the period of regular fluctuation. regular fluctuation में क्या है, अप एंड डाउन से, वो कैसे रेगुलर हैं, और इट्स मल्टीपल, दोज फ्लक्चुएशन आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, हम उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। if there are any random variation, they are reduced by the moving average, they are what, reduced by the मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है हमें, अभी हमें पता है कि यहाँ पे देखो 3 ईयरली मूविंग कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करते जाएंगे एंड देन एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 3 किया, ट्रेंड कर्व निकालते हैं। इसको हमने क्या किया, आई प्लॉट हियर। सो प्लॉट करने के बाद क्या हो जाता है, ये आपकी ओरिजिनल सीरीज है। ओके, दिस इज़ योर ओरिजिनल सीरीज। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एज पर दिस यहाँ पे 433 आ जाएगा, देन यहाँ पे नेक्स्ट 465, ये हमने कर्व को ये किया एंड देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ योर 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज को ड्रॉ करो। सो ये जो बीच में से जाएगा ना, इसके जो पॉइंट्स आएंगे, ये आपकी क्या रहेगी, दिस इज़ योर ट्रेंड कर्व। और ये जो हमने प्लॉट किया गया है ना, ये पॉइंट सभी हमने इसमें से प्लॉट किए गए हैं, दिस इज़ योर ओरिजिनल कर्व। ओके, सो बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड कर्व। ट्रेंड कर्व किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ट्रेंड कर्व इज टोटली डिपेंड ऑन योर मूविंग कर्व। ओके, सो ऐसे आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। ओरिजिनल इस वैल्यू से हमने क्या किए हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट किए हैं। 3 ईयरली मूविंग कर्व्स, यहाँ पे देखो ये पॉइंट हमने प्लॉट किए हैं, और इससे हमें जो भी कर्व मिलती हैं, दिस इज़ योर ट्रेंड कर्व। ओके, थैंक यू।